الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ عطا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی بہت سے لوگ جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہے، کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی نعمت سے نوازا. اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کی قدر کریں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کہ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت رمضان کا مہینہ، اگر ہم نے اس کی قدر کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نوازے گا. اور رمضان کے مہینے کے اندر سب سے بڑی ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کی فضیلت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان، سب سے پہلے تو پورے رمضان اس مہینے اس رات کے انتظار کے اندر پوری رات کو جاگا کرتے تھے، اور اعتکاف کی خاص طور پہ اسی رات کے انتظار میں کیا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کا ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں، ہم نے قدر کی رات میں قرآن کریم کو نازل کیا. تو بھئی دوسری سب فضیلت نبی ہو تو صرف اس رات کی فضیلت کی صرف اتنی ہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. کہ آدمی شوق دلانے کے لیے پوچھتا ہے کہ تیرے کو معلوم بھی ہے. کبھی کوئی چیز آدمی کو بہت بڑی معلوم ہو، سامنے والے کو معلوم نہ ہو، شوق دلانے کے لیے پوچھتا ہے کہ تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ چیز کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بتا رہے ہیں وما ادراک، کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من الف شہر، 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 مہینے، یہ 1000 مہینے کا حساب ہوا. تو فرمایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ رات اس لیے عطا فرمائی. بہت سارے اقوال اس کے اندر، اس میں بعض قول میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے لوگوں کی پہلے کی امتوں کی عمریں دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شاک گزرا کہ یار پہلے کے لوگوں کی عمریں اتنی زیادہ اور میرے امت کی عمر چھوٹی، تو وہ کیسے عبادت کے اندر برابری کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک رات عطا فرما دی کہ بھائی ایک رات عبادت کر لو، ایک رات عبادت کر لو تو اس رات کے اندر میں تمہیں 1000 مہینے کی رات سے بہتر ثواب عطا کروں گا. اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ بھائی بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 1000 مہینوں تک جہاد کیا، 1000 مہینوں تک جہاد کیا. تو ہماری امت میں تو پاسبل نہیں ہے کہ بھئی 1000 مہینے تک مسلسل جہاد آدمی کرتا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آدمی 1-2 دن کے اندر تھک جائے گا، 2-4 دن کے اندر، سال 2 سال کے اندر بس ختم ہو گئی ہماری عمر. اور اس میں بھی صحابہ کو بڑا رشک ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھئی یہ رات ہماری امت کے لیے عطا فرما دی کہ بھئی اس ایک رات کے اندر عبادت کر لو، میں تمہیں اتنا بڑا اجر عطا کروں گا. اور بھی بہت سارے اقوال ہیں کہ بھئی کیا بعید ہے کہ بھئی کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 راتیں عطا کر دے کہ بھئی اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی. اس طرح 10 راتیں تو بھئی 883 سال
883 साल। तो भाई नूह अलैहिस्सलाम के बाद की जो कौम है उनकी भी इतनी बड़ी बड़ी उम्रें नहीं है, लेकिन अगर 10 रात गिन ला तो हमने इस रात 10 साल की रातें भी, 10 साल की रात यानी 10 रमजान में एक एक रात, 10 रमजान में एक एक रात भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर गुजार दी। अल्लाह तबारक व तआला में 833 साल मुकम्मल इबादत का सवाब अता फरमाएंगे। तो ये इस रात की फजीलत है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु, कि इस रात के अंदर फरिश्ते उतरते हैं। इस रात के अंदर लैलतुल क़द्र के अंदर तनज़्ज़लुल मलाइका, फरिश्तों का उतरना होता है, फरिश्ते उतरते हैं। वरूहु फ़ीहा, और उसके अंदर रूह होती है। अब रूह के उलमाए मुफस्सिरीन ने बहुत सारे माने मुराद लिए हैं। सबसे असह और सबसे सही जो माना है वो ये है कि भाई उनके अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी होते हैं, या रूहुल कुद्स मुराद है। रूहुल कुद्स से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम, कि भाई उन फरिश्तों के साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी होते हैं। तो फरिश्ते भी आते हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी, जो हर उस बंदे के लिए जो इस रात में इबादत के अंदर मशगूल हो उसके लिए दुआए रहमत करते हैं। तनज़ बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, कि इस रात के अंदर वो फरिश्ते अपने तमाम खैर के अमरों को अपने रब के हुक्म से लाते हैं। और सलाम, और तमाम ये पूरी की पूरी रात सलामती है, पूरी की पूरी रात सलामतियों से भरी है। तो ये भाई इस रात के बहुत सारे फज़ाइल हैं। ये तो सिर्फ कुरान करीम की आयत के मैंने मुख्तसरन अंदाज के अंदर आप हज़रात के सामने बयान फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस रात की क्या फजीलत है और अल्लाह तबारक व तआला इस रात को कितनी अहमियत से देखते हैं। अब हमें चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरी हदीस के अंदर इरशाद है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब-ए क़द्र को रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातें, भाई ताक रातें कौन सी? 21, 23, 25, 27 और 29, ये हुई ताक रातें। तो इन ताक रातों के अंदर खास तौर पे लैलतुल क़द्र को तलाश किया करो कि भाई इन्हीं ताक रातों में से कोई रात होती है। और इसके अलावा भी आखिरी अशरे के अंदर भाई ऐसा नहीं कि इन ताक रातों के अंदर ही हो, खास तौर पे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़्यादा इस्तेमाल जिस चीज़ का था उसका बता दिया। अब बंदे को तो चाहिए कि भाई पूरा अशरा ही हमें चाहिए कि हम रात में जाग कर गुजारने की कोशिश करें। तो भाई जितनी अपनी नशासत है, जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ताकत दी है, उस ताकत के बकदर जाग कर नमाज़ों के अंदर गुजारे, नमाज़ों के साथ साथ तिलावत के अंदर, जिक्र के अंदर, अस्कार के अंदर, सलातुत तस्बीह के अंदर, तो इनके अंदर हम अगर तमाम रातें 10 रातें गुजार दें तो हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर हमें शब-ए क़द्र मिल गई तो हमारा बेड़ा पार हो गया, कि हमें 23 साल की मुकम्मल इबादत का सवाब मिल गया। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतिसाब यानी सवाब की नीयत के साथ गुजारे, खड़ा हो, तो उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाता है। तो इस रात को हमें इस 10 दिन की तमाम रातों को लैलतुल क़द्र की तलाश के अंदर गुजारना है, ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ। अगर हमने गुजारा तो हमारे पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जहाँ पर उलमा ने लिखा है कि तमाम गुनाह से मुराद सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह जहाँ पर भी कुरान करीम ने कबीरा गुनाहों को बयान फरमाया तो वहाँ पर कबीरा गुनाह के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इल्ला मन ताबा, मगर जो लोग तौबा करें। तो कबीरा गुनाह के लिए तौबा ज़रूरी है, लेकिन सगीरा गुनाह जो जाने अनजाने में बहुत से गुनाह हो जाते हैं, उन तमाम गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला इस रात की बरकत से माफ़ फरमा देते हैं। और उसके बाद एतिकाफ, कि भाई एतिकाफ में तो माशाअल्लाह 3 जन आपकी मस्जिद से बैठी गए, तो एतिकाफ वालों को तो खास कि भाई रात में जाग के ना इसकी एतिकाफ यही रहता है कि हमें शब-ए क़द्र नसीब हो जाए। एतिकाफ
किया ही किया जाता है कि हमें शब कद्र नसीब हो जाए। और जो लोग एतिकाफ करते हैं, जो लोग एतिकाफ करते हैं, वो गोया अल्लाह के दरबार में आके पड़ गए, अल्लाह के दरबार कि अब तू हमें कबूल कर ले, अब तू हमें कबूल कर ले। तो ये अल्लाह के दरबार में आके पड़ जाने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला एतिकाफ करने वाले को बहुत ही ज़्यादा नवाजते हैं। एतिकाफ करने वाले को भी चाहिए कि अपनी पूरी तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रखे और तमाम ध्यान उसी की तरफ रखे कि भाई हमको इससे बड़ा फ़ायदा होगा, ज़िंदगी हमारी बदल जाएगी। अगर हमने एतिकाफ सही तरीके से कर लिया, हमारी ज़िंदगी क्या हो जाएगी भाई, बदल जाएगी। अल्लाह ताला ने जो नवाजना है वो अल्लाह ताला ज़िंदगी भर का नवाज देगा। और इसी तरीके से औरतों का एतिकाफ भी है कि भाई औरतों को अपनी घर की मस्जिद में एतिकाफ करना चाहिए। अब औरतों की औरत जब अपने घर की मस्जिद में एतिकाफ करेगी तो उसके लिए पहले तो ये है कि भाई बहुत सारे घर ऐसे होते हैं कि जिसमें नमाज के लिए, इबादत के लिए खास जगह मुतय्यन होती है जहाँ औरत इबादत करती है। तो उसी जगह में बैठ जाए और एतिकाफ की नियत कर ले और उस जगह के अंदर जो है 21वीं रात से पहले यानी 20वीं रात की 20वां सूरज गुरु होने से पहले उस जगह के ऊपर बैठ के 10 दिन की नियत कर ले। अब तो 21वीं रात हो गई, अब अगर नियत करनी भी है तो नफल एतिकाफ की नियत होगी। एतिकाफ 3 तरीके का है। नंबर 1 एतिकाफ वाजिब है, नंबर 2 मसनून है, नंबर 3 नफल है। वाजिब एतिकाफ किसको कहते हैं? वाजिब एतिकाफ किसको कहते हैं कि भाई कोई आदमी नजर मान ले कि भाई अगर मेरा काम ये हो गया, मेरा ये पूरा काम हो गया तो मैं इतने दिन एतिकाफ में बैठूंगा। तो अब इसको एतिकाफ में बैठना ये क्या है? वाजिब है। इस एतिकाफ में बैठना वाजिब है। ये एतिकाफ की पहली किस्म है। दूसरी किस्म है मसनून, दूसरी किस्म है सुन्नत है मुअक्कदा कि भाई जो रमजान के आखिरी अशरे के अंदर किया जाता है। भाई तमाम मस्जिदों के अंदर एक आदमी को तो बैठना ज़रूरी है, एक आदमी को बैठना ज़रूरी है कि भाई एक आदमी भी अगर एतिकाफ में बैठ गया तो उसकी वजह से तमाम बस्ती वालों की तरफ से सुन्नत किफ़ाया का हक अदा हो जाएगा। अल्लाह ताला तमाम को इसके बदले में नवाज देंगे। अब इसके बाद है तीसरा है नफल एतिकाफ। तीसरा है नफल एतिकाफ। तो भाई नफल एतिकाफ इसको कहते हैं कि आदमी जब भी मस्जिद में आए तो सुन्नत की तो एतिकाफ की नियत कर ले। बिस्मिल्लाह दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नत एतिकाफ। तो भाई इसने अगर नियत कर ली तो ये एतिकाफ नफल नियत हो गया। जब भी आए हम तो ये नियत कर लेते नफल एतिकाफ होगा। तो अब जिन लोगों ने 10 दिन लगा दिए, मसनून एतिकाफ का सवाब तो वो लोग ले गए, अब 21वां रोजा आप तो शुरू हो गया। अब हम तो मसनून की नियत नहीं कर सकते, लेकिन जब शब कद्र की फज़ाइल हमने सुने तो अब हम जितना हमारी तरफ से कोशिश ये होनी चाहिए कि हम भाई रात को 10 रातों में जागे या कम से कम 4 रातों में जागे और मस्जिद में नफल एतिकाफ की नियत से रुके। नफल एतिकाफ की नियत से रुके कि भाई नफल एतिकाफ का हमें सवाब भी मिलेगा, मसनून का सवाब तो नहीं मिलेगा लेकिन नफल एतिकाफ का सवाब भी मिलेगा। और अगर हमने 10 रात जाग ली तो अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि हमें शब कद्र लैलतुल कद्र भी नसीब हो जाए। तो ये थी थोड़ी बहुत शब कद्र के फज़ाइल और मसाइल। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मिल जाए आसान रास्ता है, अल्लाह के रास्ते में बहुत लग जाओ 3 दिन रमजान के